Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Riddhi. I hope all of you are doing absolutely well. So students, today we are starting chapter 2 Principles of Management. This chapter is super important for boards as well as for CUET. And in today's lecture, we will cover meaning of principles of management, its features, significance, tailored scientific management and techniques of scientific management. So, stay till the end because I'll explain everything in a very simple and easy language. Let's begin. So, students, first of all, let's understand the meaning. Principles of management refers to the guidelines for managerial actions which are formed by observation and experiments. सिंपल लैंग्वेज में ये मैनेजर्स के लिए गाइडिंग रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैसे रन करना है. These principles are developed through observation, research, practical experience and experiments. So basically management principles helps managers in taking better decisions. Now, let's discuss the features of principles of management. So, the first feature is universal application. These principles applies to all organizations, all departments and all levels of management. चाहे स्कूल हो, बिजनेस हो या हॉस्पिटल, management principles everywhere apply होते हैं. Second feature, general guidelines. These are not exact solutions. Managers use them according to the situation. Third, formed by practice and experiment. These principles are developed through observation and practical experiences. And fourth, flexible. These principles are not rigid rules, they can be modified according to business needs and situations. Next feature is mainly behavioral. These principles focus on human behavior and relationships between superiors and subordinates. Now next, cause and effect relationship. These principles shows which action will lead to which result. For example, better coordination leads to better efficiency. And the last feature is contingent. Application of principles depends upon the prevailing situation. Every principle cannot be applied in the exact same way everywhere. It depends upon situation. Now, students, let's understand the importance or significance of management principles. So first, provides useful insights into reality. These principles improves managerial knowledge, decision making and understanding of business situations. Alright, now second, optimum utilization of resources. They helps in proper use of men, material, money and machinery. This reduces wastage and increases efficiency. Now third, scientific decisions. Management decisions become logical, practical, realistic because they are based on facts and analysis. Moving forward, the next significance is meeting changing environmental requirements. Business environment changes continuously and management principles are flexible enough to adapt accordingly. Because as we know that it's dynamic, it changes, so it helps in adapting accordingly. Now next is fulfilling social responsibility. Management principles helps organization to balance the profit goals as well as the social welfare. And the last point, management training, education and research. These principles form the base for management education, training and research. All the significance and features were really very easy to understand and I even provided you all of them in a very simple language. आपको पूरे YouTube पे इतने सिंपल लैंग्वेज में कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड करने वाला है. It's just me. So, moving forward towards tailored scientific principles of management, let's discuss them now. I hope you all are understanding everything in a very simple way till now. You can comment down if there is any doubt and you'll be getting answers in the comment section itself by me. So let's discuss further
that what are the Taylor's scientific management principles. So, as we all know, that Taylor is the father of scientific management, and if you don't know, we'll get to know more about this in our next lecture. So, basically, in short, if I tell you about him, his main aim was increasing efficiency, reducing wastage, and improving productivity. एंड ऑल्सो उनका ये मानना था कि जो भी काम हो वो सारा साइंटिफिकली हो, ट्रेडिशनल ट्रायल एंड एरर मेथड्स को यूज़ ना किया जाए, सब कुछ एक साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस अबाउट हिज प्रिंसिपल्स नाउ. देर आर टोटल 4 प्रिंसिपल्स. इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ. पहले हम इसको अच्छे से रीड करते हैं. फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. It means develop standard method via work study, replace old trial and error method with best global practices with the aim of optimum utilization of resources. यानी कि हमें एक स्टैंडर्ड मेथड को अपनाना चाहिए जो कि होता है वर्क स्टडी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी. और हमें जो पुराना ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसमें हम बस गेस वर्क और इंट्यूशंस के बेसिस पे डिसीजंस लेते थे, वो हमें इसके साथ रिप्लेस कर देना चाहिए. हमें इस ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि हम एक स्टैंडर्ड मेथड से करें सब कुछ और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज ना हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ डिसीजंस लिए जाए. सेकेंड इज हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड. हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि जो भी मैनेजर्स, वर्कर्स और ओनर्स हैं उन सब के बीच एक मेंटल रेवोल्यूशन हो. मेंटल रेवोल्यूशन को हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है मैनेजर्स, वर्कर्स और ओनर्स के बीच किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव एटीट्यूड ना हो, नहीं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो है. ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड. हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक ब्रॉडर वर्जन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम मेंटल रेवोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, मगर इसमें हम इस बारे में भी बात करते हैं कि सब कोऑपरेट करके वर्क करें, प्लस जो भी वर्कर्स हैं उनके सजेशंस को भी कंसिडर किया जाए. तो ये एक उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है. ओके, ऑल्सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड विद cooperation. Fourth, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स हो, ट्रायल एंड एरर मेथड से ना हो ऑफ कोर्स, और उन सबको उनके अकॉर्डिंग टास्क्स दिए जाएं, यानी कि जो उनकी एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही दिए जाए, और उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए. नाउ टाइम फॉर द ट्रिक. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके फर्स्ट लेटर्स, ओके, एस एच सी डी. सो एस से आप कोई भी नाम रिमेंबर कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल शीना. एच फॉर हैड. ओके, और सी और डी को आप चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हो, लाइक डी और पहले और फिर सी बाद में. और इसकी जो ट्रिक है बेसिकली वो बनेगी शीना हैड चॉकलेट डार्क, या फिर शीना हैड डार्क चॉकलेट. Okay, so Sheena is for S, scientific not rule of thumb. Had, H is for harmony not discord. Chocolate means C, stands for cooperation not individualism. And D, dark chocolate, so D is for development of workers to their greatest efficiency and prosperity. I hope ये बहुत easily फिर आपको याद हो जाएगा. Moving towards next topic, which is technique of scientific management. So there are total 8 techniques. Let's discuss them. First is functional foremanship. In functional foremanship, both planning and execution are separated. Okay, हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं. 8 स्पेशलाइज्ड फोरमैन सुपरवाइजर वर्कर्स होते हैं एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, प्लानिंग में होते हैं 4 और प्रोडक्शन में होते हैं 4. ठीक है, तो प्लानिंग में जो 4 होते हैं वो है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड
डिसिप्लिनेरियन। इसको भी याद करने का तरीका है, मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्लानिंग इंचार्ज में आता है सबसे पहले रूट क्लर्क। भाई इसको याद करने का इतना इजी तरीका है, इसके नेम में ही इसका वर्क है। रूट क्लर्क स्पेसिफाइज वर्क रूट, आपको वर्क को किस रूट को फॉलो करके करना है वो स्पेसिफाई करता है रूट क्लर्क। सेकेंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सिंपल, वेरी सिंपल, इंस्ट्रक्शंस इशू जो करता है वो होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, नेम में ही छुपा है मीनिंग, टाइम एंड कॉस्ट के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। फोर्थ, डिसिप्लिनेरियन, वेरी सिंपल, हु मेंटेन्स डिसिप्लिन। ट्रिक, DIRT डॉट, डिसिप्लिनेरियन, I for instruction card clerk, R route clerk and T time and cost clerk डॉट से याद रखो प्लानिंग इंचार्ज। सेकेंड, प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करते हैं, इसमें बाकी के 4 आते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 तो बॉस है हमारे और एक हमारा इंस्पेक्टर है। ओके, 3 बॉस है ये याद रखना और एक इंस्पेक्टर है, ठीक है। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। स्पीड बॉस, स्पीड से काम करना है तो टाइमली वर्क इंश्योर करता है बेसिकली। गैंग बॉस सारे रिसोर्सेज को असेंबल करता है अच्छे से काम के लिए। रिपेयर बॉस, जो कि रिपेयर से आता है दिमाग में, टूल होंगे कुछ तो टूल्स और इक्विपमेंट्स को मेंटेन करता है। इंस्पेक्टर, जो अच्छे से चेक करता है सब कुछ। इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, राइट। तो उसी से ही आता है, चेक करता है। क्या चेक करता है, अब मैनेजमेंट में तो काम होता है तो काम की क्वालिटी को चेक करता है जो, ठीक है, वेरी सिंपल, राइट। टोटल 8 होते हैं, 4 4 में डिवाइडेड है, ठीक है। प्लानिंग के लिए था डॉट, DIRT, डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और प्रोडक्शन में आता है 3 बॉस और एक इंस्पेक्टर। याद हो गया, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ये सेकेंड टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन नाम में ही मीनिंग है स्टैंडर्ड सेट करना, हर एक एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी बेंचमार्क। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। कोई सपोज करो कोई ब्रांड है, ठीक है, अब उसमें अननेसेसरी वेराइटीज हमने ऐड कर दिया है जिसकी कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो वो सारी अननेसेसरी प्रोडक्ट वेराइटीज़ को रिमूव करने को हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब जहाँ पे भी स्टैंडर्ड पर्टिकुलर सेट हो जाएगा, एक बेंचमार्क सेट होगा, प्लस अननेसेसरी वेराइटीज़ को हम हटा देंगे, तो उससे हमें क्या अचीव होगा, कॉस्ट, टाइम, ये हमारे सेव होंगे और टर्नओवर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ का छोड़ के जाना। एम्प्लॉयज़ का छोड़ के जाना एक तरीके से अच्छा है क्योंकि हमारा फिर कॉस्ट कम लगेगा, राइट। अगर हम अननेसेसरी वेराइटीज़ को हटा देंगे जो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उन पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड है वो सब हट जाएंगे, तो टर्नओवर इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा छोड़ के चले गए जो अननेसेसरली ऑक्यूपाइड थे, राइट। थर्ड इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी यानी फाइंडिंग बेस्ट वे टू डू अ जॉब। मेथड को आप ऐसे ही याद रखेंगे पूरे सेशन में, लाइक पूरे 12th बैच में ही, कि मेथड का मतलब है वन बेस्ट वे टू डू समथिंग। वन बेस्ट वे को हम बोलते हैं मेथड, ठीक है। तो वन बेस्ट वे फाइंड करना एक जॉब को करने के लिए इस तरीके से कि जो भी मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर है, सब कुछ मिनिमम कॉस्ट पे हम यूज़ कर पाए। फोर्थ, मोशन स्टडी। मोशन यानी मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिमूव करना। वो कैसे रिमूव होंगे, जब हम प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा देंगे। तो ये बेसिकली ऐसे इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करता है, डिज़ाइंस इक्विपमेंट्स एंड टूल्स विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग अननेसेसरी मूवमेंट थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स सो दैट द जॉब कंप्लीट्स इन लेस टाइम एफिशिएंटली, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करता है जिससे अननेसेसरी मूवमेंट हट जाए, ठीक है, ताकि जो हमारी जॉब है वो टाइम से एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। फिफ्थ, टाइम स्टडी। स्टैंडर्ड टाइम सेट करना किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। और इसमें एक और काम आता है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड है वो भी डिटरमाइन करना, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टाइम एलोकेट होगा फिर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, फटीग स्टडी। फटीग का मीनिंग भी आपको पता होगा, फटीग का मतलब होता है रेस्ट, ओके। सो इसमें क्या पता चलता है हमें कि रेस्ट इंटरवल्स कितने लिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और
एफिशिएंसी एग्जॉशन एफिशिएंसी मेंटेन रहे, एग्जॉशन अवॉइड हो, ठीक है, वेरी इजी। नाउ सेवेंथ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें हम बात करते हैं कि एफिशिएंट वर्कर्स जो होंगे, जो हमें ज़्यादा काम करके देंगे, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली आउटपुट के अकॉर्डिंग वेजेस होंगे, ठीक है। अगर आप सपोज अगर आप 400 आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको 10 पर यूनिट मिलेगा, और अगर आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपको 20 पर यूनिट मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आउटपुट इट इज़। नाउ एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है लास्ट मेंटल रेवोल्यूशन। हमने पीछे पढ़ा था नेगेटिव एटीट्यूड जो है वर्कर्स और मैनेजमेंट का, उनके आपस के एटीट्यूड को चेंज करना, पॉजिटिव में लाना, ताकि कंपटीशन से हम कोऑपरेशन तक आए और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और हमारे गोल्स अचीव हो सके। वेरी सिंपल, राइट। सो अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने कवर किया वो सारे टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किए थे एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर, एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टिल टेक्निक्स ऑफ टेलर। नाउ कल के लेक्चर में लेक्चर 2 जो हमारा आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। देयर आर टोटल 14 प्रिंसिपल्स, सो आई थॉट कि डेडिकेटेडली एक सेपरेट लेक्चर होना चाहिए उसके लिए। प्लस ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फेयोल एंड टेलर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, हम ये भी डिस्कस करेंगे और इसको भी हम ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पूरा अच्छे से लर्न कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, and if this lecture helped you, then like, share and subscribe to Study with Riddhi. I'll see you in the next lecture. Till then, take care and keep studying.